Like to acknowledge our patron engineer Pankaj Agarwal sir, co-patron engineer Pooja Agarwal ma'am, Vice Chancellor Professor Dr. Vikas Mishra sir, and our director Professor Dr. Manju Pandey ma'am for providing their invaluable insight for the smooth conduction of FTP. I, Sushma Singh, Assistant Professor, on behalf of Institute of Pharmacy, Sri Ram Swarup Memorial University, it is my distinct pleasure to extend a warm welcome to each of you gathered here today for our Day 4 Pharmacy Faculty Development Program based on the theme Integrating Ayush for Human Well-being. This program stands as a testament to our commitment to academic excellence. Stars shines at night, some shine at bright daylight. I am thrilled to introduce our esteemed guest speaker for this session, Dr. Abhishek Gupta sir. He brings with him a wealth of knowledge and experience that is both impressive and inspiring. Dr. Abhishek Gupta sir is a professor and head at the Department of Pharmacognosy at Hygeia Institute of Pharmaceutical Education and Research, Lucknow, where he made significant contribution. Things that fascinate Dr. Abhishek Gupta sir are herbal drug research. He made his contribution involving herbal drug standardization, natural products extraction, isolation, and analysis of herbal phytoconstruct nutritional supplements, and anti-cancer activity of novel drugs. His insights are highly regarded within the pharmacy community. Today, Dr. Abhishek Gupta sir will be sharing his expertise on the development of an extraction and isolation method for industrially valuable metabolite. This promises to be a session filled with invaluable knowledge and practical insights that will undoubtedly enrich our teaching practices and academic pursuits. Please join me in extending a warm welcome to Dr. Abhishek Gupta sir. We are truly privileged to have him with us today, and we eagerly anticipate his presentation. Sir, you can now start with your presentation. Hello, am I audible? Yes, sir, you are audible. Okay, my screen is visible. Yes, sir. Okay. So I would like to extend my gratitude for the patrons and the management committee of Sri Ram Swarup University. So the topic of my presentation is development and extraction isolation method for industry valuable metabolites. So before beginning the presentation, I would like to give a brief introduction about secondary metabolites. So as we all know that the medicinal plants that we use in various traditional systems of medicine, like Ayurveda, Siddha, Unani, homeopathy, they all contains the chemical compounds that are beneficial in different diseases and disorders. So these chemical compounds are basically the secondary metabolites of the plant. So there are basically two metabolites that we study in medicinal plants. The first one is the primary metabolites and second one is the secondary metabolites. So primary metabolites generally contains carbohydrates, protein, fats, and secondary metabolites generally contain alkaloids, terpenes, phenols, flavonoids, steroids, glycosides, these kind of compound. So in this category, there are some, you can say like valuable compounds which have provided a great relief in the traditional system of medicine that are highly considered highly important. So for example, in alkaloids, we have morphine, quinine, berberine. In the stimulants category, we have caffeine, which is very common. For pesticides, we have nicotine. In the terpenes category, we have limonene and other menthol and other type of compounds in the like volatile oil category.
In phenolics, we have the famous curcumin of turmeric, which is used in cosmetics and pharmaceuticals. In flavonoids also, we have a lot of food coloring, dietary supplements type of compounds, and steroids also. So out of all these compounds, the one compound that I'm highly interested in and I would like to talk about in this session is berberine. So first of all, let me share my viewpoint that most of the compounds that we use in Ayurveda, or the drugs that we use in Ayurveda and other systems of medicine, the plants that we use are not that much standardized, and for like using in a local setup, that is okay, but for if you want to manufacture these compounds, if you want to manufacture these compounds, or you want to export these compounds to the like other countries, that then your extract, your compounds should be of high quality and purity. So this is a major setback for the supplement industry in Western countries like US and Europe. And for this, the standardization of a compound, its extraction, isolation is a big task. So like this, there is one compound known as berberine, which is highly used in hyperlipidemia, diabetes, cancer, these type of conditions. So berberine is a isoquinoline type of alkaloid, which is isolated from different varieties of berberis, such as Berberis aristata, Berberis asiatica, and other species of berberis. And it has shown potential in wide range of clinical applications, like I've told, like hyperlipidemia and diabetes. So the unique pharmacological properties of berberine suggests its potential role in various clinical applications, and the structure of berberine serves as a crucial foundation and promising natural lead compound for exploring different chemical modifications in specific positions, aiming to discover more selective and targeted medical applications. So for example, we can like for semi-synthetic derivatives, there are hundreds of studies which have shown that berberine is a very potent compound for different activities. So I'll start with the basic plant profile. So the picture you can see here is of Berberis aristata, and it belongs to the genus Berberis, species aristata. The synonym are Indian Barbary, and it is most commonly known as Daru Haldi or Chitra in Hindi. The parts that are relatively used are root system, bark, leaves, rhizome, fruits, means all the parts are used, but specifically the roots of berberis are the most important part of the plant. So Berberis aristata is an upright spiny shrub, typically reaching a height of 2 or 3 meters. The wood of the plant is yellow, as you can see in the picture, and therefore it is known as Daru Haldi, because its color resembles that of the haldi. Coming to the chemical constituents, the berberis have various protoberberine and bis-isoquinoline type of alkaloids. The main alkaloid of berberine are berberine, palmitin, oxycanthine, bermamine, jatril, these type of compounds, and additionally some more alkaloids like Pakistanine and was also isolated from Berberis aristata. So these are the structures of some of the compounds: berberine, palmitin, carrageenan. Coming to the medicinal and ethnobotanical uses, the tinctures of berberis serve as stomachic, cholagogues, antiperiodics, and alteratives. They are effective in cases of remittent and intermittent fevers, debility, periodic neuralgia, and menorrhagia. Furthermore, berberis is also used to treat jaundice, spleen enlargement. It's also considered important as a laxative, diaphoretic, antipyretic, antiseptic. The anti-osteoporosis action of berberis is also recognized in its methanol extract.
and it is also used as analgesic, antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, and antipyretic studies. Traditionally, in some rural parts of the Himalayan regions, the Bhotia communities use the decoction of the plant to treat eye diseases. Similarly, the Malani tribal regions of Himachal utilize this formulation for various skin problems, liver diseases, piles, and malaria. So, as you can see, this plant is traditionally very important for different communities of India. So, the need for research for this plant is that as this plant is very important and have a very potent alkaloids, the industrial extraction and isolation method for pure berberine and its different berberine species is very important, because the main reason for this is that the total alkaloid present in this plant is 2%. Means the percentage of berberine in Berberis species is maximum of 2% to 2.1 in some species. And because the quantity of berberine is very less, therefore the extraction and isolation method becomes more important in this plant. While several extraction methods exist for isolating berberine from Berberis tea, the existing extraction methods are primarily suited for laboratory scale operations. Means the extraction methods are not suited for industrial output, and there is a need for the development of efficient and cost-effective industrial extraction isolation process to obtain berberine with its highest purity. Let me clear one more thing कि इंडस्ट्री में क्या है कि इंडस्ट्री में जो बर्बरीन की एक्सट्रैक्शन का जो ऑप्टिमाइजेशन है वो बहुत कम था, ठीक है, और उसकी जो प्योरिटी आ रही थी वो भी बहुत कम थी। तो इंडिया की जो सबसे बड़े बर्बरीन के एक्सपोर्टर है, सो दे रीच्ड आउट टू मी एंड दे हैव सेड कि हमें अपने प्रोडक्ट की यील्ड और प्योरिटी दोनों बढ़ानी है, क्योंकि उनका जो यूएस में नया एक्सपोर्ट शुरू होना था, तो उन्होंने उनसे बोला था कि इंडस्ट्री से कि हमारी जो प्योरिटी है और जो यील्ड है वो कम है। तो क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और उन्होंने बहुत सारे मेथड्स अप्लाई करके देख लिए थे, उनके जो एग्जिस्टिंग मेथड्स थे, तो उनकी जो यील्ड आ रही थी वो बहुत कम आ रही थी, और जो उनकी प्योरिटी थी वो अराउंड 60% प्योरिटी का बर्बरीन वो प्रोड्यूस कर पा रहे थे। तो फॉर दिस दे हैव रीच्ड आउट टू मी, और मैंने फिर इंडस्ट्री से वो प्रोजेक्ट लेकर इस पे काम शुरू किया था। तो द एम एंड ऑब्जेक्टिव वाज टू फर्स्टली द कलेक्ट एंड ऑथेंटिकेट द बर्बेरिस एरिस्टाटा रूट्स और स्टेम्स, फिर उनकी फिजिको केमिकल और फाइटोकेमिकल एनालिसिस करना, फिर बर्बेरिस की रूट्स और स्टेम में बर्बेरिन कंटेंट को निकालना, फिर उनका प्रॉपर एक एक्सट्रैक्शन मेथड को ऑप्टिमाइज करना, फिर बर्बेरिन हाइड्रोक्लोराइड को एक्सट्रैक्ट आइसोलेट करना, फिर उसकी एक्सट्रैक्शन में डिफरेंट इटरेशंस करके उसकी प्योरिटी को बढ़ाना, उसकी क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस करना HPLC और SPTLC से, और फिर उसकी IR NMR एनालिसिस से उसका स्ट्रक्चर को कंफर्म करना। तो ये मेरा जो है टोटल एम एंड ऑब्जेक्टिव था। प्लान ऑफ वर्क में मैंने कलेक्शन, ऑथेंटिकेशन और स्टोरेज ऑफ प्लांट इन सब से शुरू किया। फिर उसके बाद जो जनरल फार्माकोग्नोस्टिक पैरामीटर्स होते हैं, जैसे फिजिको केमिकल, फाइटोकेमिकल एनालिसिस करना, बर्बेरिन कंटेंट को जो क्रूड रूट और स्टेम थी पहले उसमें निकालना, और फिर बाद में उसका एक्सट्रैक्शन करना, रूट और स्टेम दोनों का। फिर जब रूट और स्टेम का एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसके बाद जो बर्बेरिन को उसमें से और प्यूरिफाई करके आइसोलेट करना, और फिर उसमें फिर बर्बेरिन कंटेंट को निकाल के देखना कि कितना आया है, और इससे ये भी देखना कि हमारा जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है वो कितना ऑप्टिमाइज हम कर पाए हैं, और इसके बाद उस बर्बेरिन को क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस से जो है आइडेंटिफाई और क्वांटिफाई करना। ये मेन पर्पस था इस काम का। तो इसके लिए सबसे पहले क्या किया कि जो बर्बेरिस की रूट्स हैं वो जो इंडस्ट्री है उसने हम लोगों को प्रोवाइड करा,
जो कि मैंने फिर उसको ऑथेंटिकेट करवाया, और ऑथेंटिकेट करवाने के बाद जो उसकी इनिशियल फार्माकोग्नोस्टिकल फाइटोकेमिकल एनालिसिस थी वो परफॉर्म करी, जैसे कि लॉस ऑन ड्राइंग और क्वालिटेटिव फाइटोकेमिकल स्टडीज। उसके बाद उसकी फिजिको केमिकल और फाइटोकेमिकल स्टडीज करी गई, जैसे कि टोटल ऐश, एसिड इंसॉल्युबल ऐश, और उसके बाद एक्सट्रैक्टिव वैल्यू डिटर्मिनेशन हम लोगों ने उस पर किया। इसके बाद जो क्रूड रूट और स्टेम का पाउडर था, मतलब कि अभी एक्सट्रैक्शन नहीं किया है, अभी जो रूट का पाउडर है और स्टेम भी ले ली थी ये देखने के लिए कि स्टेम में कितना बर्बरीन है। क्रूड रूट और स्टेम का पाउडर निकाल के उसकी हम लोगों ने HPTLC एनालिसिस करी। ये उसके कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं, ये हम लोगों ने उसकी एनालिसिस करी, और फिर उसकी HPTLC के बाद थोड़ी और सेंसिटिव उसकी एनालिसिस हो पाए, क्योंकि बर्बरीन कंटेंट जैसे कि मैंने बताया कि बहुत कम होता है, तो उसकी HPLC एनालिसिस भी करी। तो बर्बरीज को एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस को मैं थोड़ा एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि सबसे पहले जो बर्बरीज प्लांट है उसकी बार्क, स्टेम, रूट, इन सब में बर्बरीज मिलता है। तो जो बर्बरीज की रूट और स्टेम है उनको मैनुअल क्लीनिंग करके, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी रूट्स होती हैं, तो उनको पहले एक मैकेनिकल उससे ग्राइंडर से काट के, छाट के, धो के, साफ करके, धूप में सुखा के, इन सबको ऐसे करके जो है उसको पहले छोटे छोटे चिप्स चिप्स बनाए, और फिर उसके बाद उसको जो है बड़े बड़े परकोलेटर्स में उसको डाल के उसका एक्सट्रैक्शन किया, और जो वाटर एक्सट्रैक्ट निकाला, क्योंकि इंडस्ट्री का कहना था कि वाटर एक्सट्रैक्ट ही चाहिए, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नहीं चाहिए। और जो वाटर एक्सट्रैक्ट करके उसको मीडियम को थोड़ा एसिडिक करके, उसको एसिडिक मीडियम में उसको सोक करके परकोलेट करके उसका एक्सट्रैक्शन किया गया। एक्सट्रैक्शन टैंक में 6 से 7 टाइम उस प्रोसेस को रिपीट किया गया। फिर उसके बाद उसको ट्रीट किया गया एसिड से और सॉल्ट से, ताकि जो इम्प्योर बर्बरीन क्लोराइड है वो जो है प्रेसिपिटेट होके आ जाए। This mixture is then passed through filter paper, by which precipitate is collected by filtration, filtrate being drained off. When the filter paper gets precipitate is collected in the form of paste with high moisture content, और फिर उस पेस्ट को सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल के सेमी सॉलिड केक के रूप में उस एक्सट्रैक्ट को निकाला गया। फिर उस जो आपका एक्सट्रैक्ट आया है सेमी सॉलिड केक के फॉर्म में, उसको हॉट वाटर में और एक्टिवेटेड चारकोल में डाल के उसको मिक्स किया गया, और फिर जो रिजल्टिंग मिक्सचर है उसको वापस फिल्टर करके रेजिड्यू जो उसका आया उसको डिस्कार्ड कर दिया गया, और जो उसका सॉल्वेंट आया, जो लिक्विड आया, उसको फिर से कूल करके आइस में उसको दोबारा उसको रिक्रिस्टलाइज किया, तो उसके बर्बरीन के जो क्रिस्टल्स हैं वो हमको मिल जाते हैं। और फिर जो बर्बरीन के क्रिस्टल है उसको ड्राई करके और फिर उसको मिल से 100 मेश से पास करा के उसको फाइनली एक फाइनल प्रोडक्ट हम लोगों का मिलता है। तो ये उसका एक जो है लेआउट है कि किस तरीके से किया गया, कि सबसे पहले बर्बरीज की रूट्स और स्टेम्स को लेके उसको क्लीनिंग, कटिंग, क्रशिंग करी गई, फिर उसको परकोलेटर में डाला जहाँ की वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड लिया 0.2 to 0.5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। जब परकोलेटर में इसको 6 to 7 टाइम्स चलाया तो उसका एक्सट्रैक्ट निकला। फिर एक्सट्रैक्ट को हमने क्या किया, प्रेसिपिटेशन टैंक में डाला, जहाँ की हमने उसमें सोडियम क्लोराइड 3 to 6% और हाइड्रोक्लोरिक एसिड 0.01 to 0.02% डाला। प्रेसिपिटेशन टैंक में अराउंड 24 आवर्स रखने के बाद हमने उस सॉल्वेंट को फिल्टर प्रेस से निकाला। फिल्टर प्रेस से निकालने के बाद फिल्ट्रेट जो है उसको कर दिया, और जो फिल्टर प्रेस में जो एक्सट्रैक्ट है वो उसके फिल्टर्स के बीच में चिपक के रह जाता है, तो उसको फिर स्क्रैप आउट कर लिया। स्क्रैप आउट करके वो एक केक टाइप का मिल जाता है, तो वो उसको निकाल के फिर उसको प्यूरिफिकेशन किया हॉट वाटर से। हॉट वाटर से जब प्यूरिफिकेशन किया तो उसी स्टेप में हम लोगों ने उसके जस्ट बाद उसमें एक्टिवेटेड चारकोल डाल देते हैं, और फिर उसका फिल्ट्रेशन करते हैं। फिल्ट्रेशन करने के बाद जो रेजिड्यू मिलता है उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, और जो लिक्विड होता है उसको कूल कर लेते हैं। कूल करने जैसे ही आप उसको कूल करते हो तो क्या होता है कि कूलिंग में क्या होता है कि जो बर्बरीन है वो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो हॉट वाटर में जो है डिजोल्व होता है और
कोल्ड जैसे ही आप उसको करते हो तो वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। तो जैसे ही आप उसको आइस बाथ में डाल के प्रेसिपिटेट करते हो तो दैट बिकम्स क्रिस्टल्स ऑफ बर्बरीन ऑफ, देन यू कैन लाइक फिल्टर ड्राई, और फिर उसको आप साइज रिडक्शन करके, जो मिल में करके उसको साइज रिडक्शन करके आप उसको पैक कर सकते हो। सो ये वो इंडस्ट्री में जाके मैंने काम किया था। आप मेरे राइट हैंड साइड पे देखोगे तो बर्बरीन के चिप्स पड़े हुए हैं, और मेरे आप जस्ट पीछे देखोगे तो ये बड़ा सा परकोलेटर है जिसमें कि ये बर्बरीन की चिप्स डाल के और फिर इसमें एसिडिक मीडियम में वाटर एज अ सॉल्वेंट उसको एक्सट्रैक्ट करता है। ये इस तरफ आप मेरे पीछे देखोगे तो ये परकोलेटर है। इस परकोलेटर में जैसा कि मैंने बताया कि एक्सट्रैक्ट करने 6 से 7 टाइम्स उसको रिपीट करके जो एक्सट्रैक्ट निकलता है वो एक्सट्रैक्ट जाके इस परकोलेटर में चला जाता है। फिर इस परकोलेटर में आप NaCl और आप इसमें एसिटिक एसिड डालते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉरी। तो ये जो है कुछ मैंने ऑप्टिमाइजेशन मेथड इस एक्सट्रैक्शन के किए थे। तो जो इनिशियल मैंने आपको फ्लो चार्ट बताया था उसी तरीके से मैंने पहला एक्सट्रैक्शन मेथड इसमें यूज किया। दूसरे मेथड में मैंने क्या किया कि जो सल्फ्यूरिक एसिड का जो कंटेंट है, जो कि मैंने लास्ट एक्सट्रैक्शन में 0.2% रखा था, वो मैंने यहाँ पे इसको बढ़ा के 0.25% कर दिया और बाकी की कंडीशंस इसकी सेम रखी। तीसरी मेथड में मैंने क्या किया कि इसके टेम्परेचर को थोड़ा सा मैंने डिक्रीज कर दिया, और जो पहले हॉट वाटर में कर रहे थे वो मैंने अब रूम टेम्परेचर पे इसके टेम्परेचर को थोड़ा सा मॉड्यूलेट करने की कोशिश करी। तीसरे मेथड में मैंने क्या किया कि टेम्परेचर वापस मैंने 25 डिग्री से बढ़ा के 50 डिग्री के अराउंड करा, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड का जो कंटेंट है वो मैंने डबल कर दिया, 0.25 से 0.5% कर दिया। नेक्स्ट इटरेशन में मैंने क्या किया कि जो सोडियम क्लोराइड का परसेंटेज है वो मैंने बढ़ा के 3% के आसपास कर दिया। इसके बाद मैंने फिर जो नेक्स्ट इटरेशन था उसमें मैंने सोडियम क्लोराइड का जो परसेंटेज है वो 3 to 6% किया। अब आप मुझसे यहाँ पे ये भी पूछ सकते हो कि ये मैं किस बेसिस पे इटरेशंस कर रहा था। तो मैंने क्या किया कि पहला जो मेथड है उससे जो मैंने एक्सट्रैक्शन किया और उससे जो बर्बरीन मुझको मिली, उस बर्बरीन को मैंने HPLC एनालिसिस के लिए दिया। ठीक है। उस HPLC एनालिसिस जब करी तो उस HPLC एनालिसिस में बर्बरीन की प्योरिटी आई। तो उस प्योरिटी के बेसिस पे फिर मैंने उसमें इटरेशंस किया। तो मैंने सेकेंड मेथड यूज किया। सेकेंड मेथड में उसकी जो प्योरिटी है वो थोड़ी सी बढ़ गई। तो जब बढ़ गई तो मैंने उसमें और इटरेशंस किया, तो थर्ड मेथड मैंने यूज किया। तो थर्ड मेथड के बाद मुझको जो बर्बरीन मिला उसकी प्योरिटी और उसकी यील्ड भी थोड़ी सी बढ़ गई। चौथे मेथड में यील्ड भी थोड़ी सी और बढ़ी, प्यूरिटी भी थोड़ी सी और बढ़ी। पांचवें मेथड में, जब पांचवा मेथड में मैंने सोडियम क्लोराइड को 3% तक बढ़ाया तो उसकी प्योरिटी भी थोड़ी और बढ़ गई और यील्ड भी बढ़ गई। और सिक्स मेथड में जब मैंने उसकी सोडियम क्लोराइड के परसेंटेज को 3% से 6% जैसे ही किया तो उसकी जो प्योरिटी और यील्ड बहुत ड्रास्टिकली बढ़ गई, मतलब 80% से ऊपर चली गई। तो जब इतना सब कुछ हो गया तो मैंने इसमें एक लास्ट इटरेशन किया जिसमें कि मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कंटेंट को 0.02% से बढ़ा के 0.04% किया। एक्टिवेटेड चारकोल यूज किया यूजिंग हॉट वाटर 90 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और बाकी के जो पैरामीटर्स है उनको सेम रखा। फिर इन सातों मेथड में जो HPLC एनालिसिस करी उनके रिजल्ट्स को फिर बाद में जो है एनालाइज किया। ठीक है। तो ये HPLC एनालिसिस का जो मेथड यूज किया उसका यहाँ पे मेथड मैंने दिया हुआ है। और फिर उसके बाद लास्ट में, सबसे लास्ट में FTIR 1H NMR वगैरह किया, और अपनी खुद की स्टडी के लिए एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी भी करी जिसमें कि DPPH, टोटल फेनोलिक, टोटल फ्लेवोनॉइड ऐसे भी किया। अब बात करते हैं यहाँ पे रिजल्ट्स की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शुरुआत में मैंने क्या किया था कि वैसे तो एरिस्टाटा की रूट्स पे काम करना था, लेकिन मैंने शुरुआत में रूट्स और स्टेम दोनों को लेके चले।
तो जब दोनों को लेके चले तो उनका एक्सट्रैक्टिव वैल्यू, ऐश वैल्यू, एसिड इनसॉल्युबल ऐश और परसेंटेज लॉस ऑन ड्राइंग वगैरह ये सब किया, जिसका कि रिजल्ट में मुझको समझ में आया कि जो रूट है उसमें जो एक्सट्रैक्टिव वैल्यू है वो ज़्यादा है। फिर उसके बाद टोटल शुगर और स्टार्च भी किया, जिसका रिजल्ट आपके सामने है, जिसमें कि टोटल शुगर जो है वो एरिस्टाटा के रूट में कम था और स्टेम में ज़्यादा था। और सेम वाज फॉर स्टार्च, की स्टार्च जो है एरिस्टाटा के रूट में कम था, स्टेम में ज़्यादा था। फाइटोकेमिकल एनालिसिस की बात करें तो रूट्स में जो एल्कलॉइड का परसेंटेज था दैट वाज मच higher than when compared to stem, same with the tannins, saponins and flavonoids. HPTLC एनालिसिस की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुरुआत में मैंने एक्सट्रैक्ट पे स्टार्ट करने की बजाय क्रूड पे काम किया, कि सबसे पहले तो ये देख ले कि रॉ रूट में ही कितना है बिना एक्सट्रैक्ट निकाले। तो उसमें जब मैंने एक्सट्रैक्शन ऑन द राइट हैंड साइड की बर्बरीन का परसेंटेज रूट्स में 1.9% आया था क्रूड रूट पाउडर में, और क्रूड रूट स्टेम क्रूड बर्बरी स्टेम में जो है वो 0.5% आया था। तो इनिशियली ही यहाँ पे ये क्लियर हो गया था कि रूट्स में जो बर्बरीन का परसेंटेज है वो ज्यादा है। तो इसलिए फिर इस स्टेप के बाद से मैंने स्टेम को डिस्कार्ड कर दिया और रूट्स को लेके मैं आगे बढ़ा हूँ। ये HPTLC का मेथड वैलिडेशन है, ठीक है, प्रिसीजन स्टडीज रिकवरी एनालिसिस। ये HPTLC की यहाँ पे प्लेट है, जहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो कंपाउंड्स आपको बीच में दिख रहे हैं नीचे लॉन्ग वेवलेंथ वाली प्लेट में, जब आप देखेंगे तो इसका RF 0.48 आ रहा है और बीच में स्टैंडर्ड बर्बरीन लगाया हुआ है। स्टैंडर्ड बर्बरीन जो लगाया हुआ है, हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir, you are audible. अच्छा ठीक है। तो बीच में मैंने स्टैंडर्ड बर्बरीन का मार्कर कंपाउंड लगाए हैं और लेफ्ट और राइट में तीन तीन सैंपल लगाए हैं, ठीक है, जिसमें कि एक तरफ आपका रूट के एक्सट्रैक्ट लगे हुए हैं और एक तरफ आपके स्टेम के एक्सट्रैक्ट लगे। ये उसकी क्रोमेटोग्राम है। ये स्टैंडर्ड लेफ्ट हैंड साइड पे स्टैंडर्ड बर्बरीन है और राइट हैंड साइड में आपका जो है वो रूट पाउडर का आपका पीक है। ये उसके ओवरले UV ओवरले स्पेक्ट्रा है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है आपका HPLC का परसेंटेज है, जो यहाँ पे आप देखेंगे कि 0.5% आ रहा है, ठीक है, 0.52% ये स्टेम में आ रहा है, ठीक है। फिर आप जब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मेथड 1 में बर्बरीन क्लोराइड है उसका यहाँ पे HPLC एनालिसिस करिए, जिसमें कि जो बर्बरीन का परसेंटेज है वो नियर अबाउट 19% आ रहा था, ठीक है। इसके बाद जो मेथड 2 इसमें इटरेशंस करे तो उसमें आप देखेंगे कि वो जो परसेंटेज 19% है उससे बढ़ के 38.55% हो गया बर्बरीन का। फिर उसके बाद जब इसमें इटरेशंस करे मेथड 3 यूज किया तो उसमें 38% से बढ़ के 42% हो गया। इसके बाद जब मेथड 4 यूज किया तो मेथड 4 में बर्बरीन का परसेंटेज आप यहाँ पे देखेंगे कि 45.7%, यहाँ पे नियर अबाउट 46% जो है वो बर्बरीन का परसेंटेज बढ़ के आया। यहाँ पे आप देखेंगे कि मेथड 5 में जो बर्बरीन का परसेंटेज है वो अप्रोक्सीमेटली लिटिल बिट मोर देन 50% आ गया। जब मेथड 5 में जब इसका परसेंटेज 20% से बढ़ के 50% आ गया तब मुझे समझ में आ गया कि मैं जो हूँ एक सही रास्ते पे चल रहा हूँ और इसका परसेंटेज और बढ़ सकता है। फिर इसके बाद जब मेथड 6 यूज किया तब आप उसमें देखेंगे कि 50% से बढ़ के उसका जो बर्बरीन की प्योरिटी है वो सीधे 81.36% आ गई HPLC एनालिसिस से। और इसके लिए मैंने क्या किया था, पहले इन हाउस भी HPLC करा और रिजल्ट्स को कंफर्म करने के लिए सैंपल्स बाहर की लैब में भेज के भी HPLC करवाई थी। फिर जब मेथड 7
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1% से बढ़ के जो बर्बरीन की प्योरिटी है वो 98.86% आ गई, और ये अभी तक की सबसे हाईली प्योर बर्बरीन है जो इस इंडस्ट्री में बन रही है, और इंडिया में भी इससे ज्यादा प्योर बर्बरीन कोई नहीं बना रहा। तो ये जो मेथड है ये पूरा ऑप्टिमाइज करके नियर अबाउट 99% प्योर बर्बरीन इससे निकाल के दिखाइए विदाउट यूजिंग एनी लाइक कॉलम क्रोमेटोग्राफी या और कोई हाईली सोफिस्टिकेटेड आइसोलेशन मेथड। प्योरली एक्सट्रैक्शन मेथड में ही ऑप्टिमाइजेशन करके इसको 99% प्योर बर्बरीन के फॉर्म में आइसोलेट करा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बर्बरीन की यील्ड है वो भी बढ़कर आई, कि पहले मेथड में 15% यील्ड आ रही थी, दूसरे में 21, तीसरे में 32, फोर्थ में 36, फिफ्थ में 41, फिफ्थ में सिक्स में 47, और लास्ट मेथड में 50% यील्ड आ गई थी। ये यील्ड भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इतनी यील्ड भी बर्बरीन में मिलती नहीं है जनरली, बर्बरीस एरिस्टाटा का जब आप एक्सट्रैक्शन करते हैं या किसी और बर्बरीस स्पीशीज का एक्सट्रैक्शन करते हैं। इन सब ऑप्टिमाइजेशन के बाद फिर इसकी आईआर एनालिसिस करी, उसका ये रिजल्ट है स्पेक्ट्रा, ये एनएमआर है। इससे बर्बरीन का स्ट्रक्चर एलुसिडेशन करके उसकी स्ट्रक्चर को कंफर्म करा गया, और ये एंटीऑक्सीडेंट स्टडी के रिजल्ट हैं जिसमें कि जो रूट्स हैं उनका एक ठीक ठाक सा एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी आ रही थी। टोटल फिनोलिक और फ्लेवोनॉइड कंटेंट भी आपके यहाँ पे सामने दिया हुआ है। डिस्कशन कौन, ओके। सो ये जो काम था ये अपने आप में एक बहुत इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत वैल्यूएबल काम था, और इसके लिए इंडस्ट्री ने बहुत अप्रिशिएट किया उस प्रोजेक्ट में, काफी उसको इंसेंटिव दिया। और इसके बाद ये जो प्रोजेक्ट है अभी रिसेंटली 6 मंथ्स पहले ही खत्म करा है, तो इसका पेटेंट जो है वो फाइल कर दिया गया है। और जो पेटेंट है वो मेरे और इंडस्ट्री के बीच में दोनों को मिला के उसको कोऑथरशिप में डाला गया है। और ये जो इंडस्ट्री है इसने जब इस सैंपल को अपने यूएस में जब भेजा एज अ सैंपल, तो उन्होंने सैंपल को बहुत अप्रिशिएट करके इसको पास भी कर दिया इंडस्ट्री के लिए। सो नाउ दे आर प्रोड्यूसिंग दिस बर्बरीन विद दिस मेथड, एंड लाइक दे आर वेरी हैप्पी। और इतना अच्छा प्योरिटी का बर्बरीन सैंपल मतलब इंडिया में और इस वक्त कोई नहीं बना रहा इस इंडस्ट्री के अलावा। ओके, सो दीज आर सम रेफरेंसेस। ओके, थैंक यू। अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज जरूर पूछिए। Thank you, sir, for such a nice session. I request all the participants to ask question if they have any. हेलो प्लीज सर। कुछ भी पूछिए, आप कोई छोटा बड़ा क्वेश्चन जो भी है कुछ भी पूछ सकते हैं जी। Sir, I am asking that other species of berberries other Asiatica contain same amount of berberine? लगभग लगभग सेम होता है, थोड़ा बहुत परसेंटेज होता है। जैसे कि उत्तराखंड में एक स्पीशीज पाई जाती है बर्बरीस लीकिया समथिंग ऐसे करके होता है, उसमें परसेंटेज जो है वो 2.5 के आसपास होता है। ठीक है, और इसमें नियर अबाउट 1.92% होता है। जो एशियाटिका होता है उसमें भी 1.8 के आसपास परसेंटेज होता है। तो नियर अबाउट सेम परसेंटेज ही होता है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है कि जो ये प्लांट है ना, ये थोड़ा सा रेयर है, और इसका जो ऑक्शन होता है वो गवर्नमेंट के थ्रू होता है। आप अपने आप जाके इस प्लांट को कट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, गवर्नमेंट ऑक्शन करती है। जो हिमालयन रेंज है वहाँ पाया जाता है, उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में, और सिर्फ वहीं पाया जाता है। और इसकी वहाँ पे उत्तराखंड और हिमालयन रेंज में 4 स्पीशीज पाई जाती है, एशियाटिका, और आपका ये एरिस्टाटा, एक लीकिया है, और एक एक शायद चित्रा है।
same part like a stem, bark and root? हाँ, रूट यूज होती है, मेनली रूट यूज होती है, लेकिन जैसे अगर आप मार्केट में दारू हल्दी लेने जाओ तो इसकी स्टेम भी दे देते हैं, क्योंकि इसकी स्टेम भी येलो कलर की होती है। Any more questions? किसी के और क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिए। Okay, sir. Thank you so very much. And I will. और I would especially like to express our sincere thanks to our distinguished guest lecturer, Dr. Abhishek Gupta, sir. Your presence here has been truly inspiring and informative. The depth of knowledge and clarity you deliver has left a lasting impression on all of us. I would also like to thank all the participants for their active engagement and thoughtful contribution throughout the session. Once again, very heartfelt thank you to sir. thank you so much. I'll request to all the participants to on their camera so that I can take the screenshot. Please on your camera. Okay. Soon feedback form will be shared on the WhatsApp group. Kindly filled in and submitted. Okay, thank you to all. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.